सिमिलरली हमारे साथ आज पीसीएसटी मैडम इंजीनियर एस मांगा भी has also joined with us and she is with us and इंजीनियर्स एसोसिएशन के तरफ से मैं उनको भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ हमारा प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इंजीनियर एनएस यूके साहब भी यहाँ जुड़े हैं और कनेक्टेड है। मैं उनको भी स्वागत करता हूँ इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से। और हमारे साथ सीपीडी ब्रिज वर्क्स इंजीनियर डीपी लाल साहब भी कनेक्टेड है। मैं उनको भी यहाँ स्वागत करता हूँ सभी के तरफ से, इंजीनियर डीपी लाल सर। और आप लोग, मैं ये आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, सर हमारे साथ इतना जुड़े हुए हैं, सर हमारा प्रोग्राम को इतना लाइक करते हैं, बीइंग डिस्पाइट ही इज इन हॉस्पिटल, फिर भी सर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो मैं सर आपको आपका ये स्पिरिट के लिए नमन करता हूँ। आप अभी हमारे साथ हॉस्पिटल से होते हुए भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कंसेंट दिए हैं। सीओ साहब वो थोड़ी देर में आएंगे। सर नमस्ते सर, मैं आपका ये स्पिरिट को नमस्कार करता हूँ और आपका सभी का तरफ से आपको सर धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप इतना हमारे लिए हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्यार करते हैं कि आप हॉस्पिटल से रहते हुए भी हमारे साथ जुड़े होने के लिए अपना कंसेंट दिए हैं। सर नमस्कार। नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियर गौतम दत्ता जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीओ साहब भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सीओ साहब को भी हम यहाँ वेलकम करेंगे। पीसीएमई इंजीनियर गौतम दत्ता जी, मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से आपको भी स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। तो सर आज we have been assembled here to celebrate the birth anniversary of Bharat Ratna M विश्वेश्वराय जी। और इससे पहले वो प्रोग्राम हमारा शुरू करने से पहले हमारा जीएम साहब हमारे लिए एक मैसेज दिए हैं। मैं वो मैसेज को शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूंगा और वो मैसेज भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा। तो उसके बाद हमारा कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द मैसेज ऑफ जीएम साहब। This is the message we have received from Honorable General Manager Vidya Bhushan ji. Message. East Coast Railway Engineers Association initiative to observe Engineers Day on 15 September 2020 through virtual mode is a brilliant tribute to engineering profession. The topic of webinar, the pandemic and engineers of East Coast Railway, is a contemporary topic. The old proverb, an engineer never shows no solution, has once again proved itself. While the world grapples the COVID virus, engineers have led the world with innovations to protect people from COVID. Almost daily new gadgets were designed and issued for use to protect people from the virus. Gadgets continue to be designated to eliminate human contact in active in normal living. Railway engineers continue to display to the people their dedication, innovativeness, and leadership by modifying existing work practices and evolving new systems, gadgets, and protocols to continue railway services. Lead was taken to sustain the population through lockdowns. Our dedication to public service was conspicuous in the public domain. I exhort engineers of East Coast Railway to continue to innovate, adopt, evolve, and introduce new practices, systems, gadgets, and aids to sustain normal human activity as if COVID is a part of living. I wish the Ecor Engineers Association success in each endeavor. Jai Hind.
Engineer Vidya Bhushan ji, General Manager. Thank you, sir. Now you are not able to be with us, but your message has given lot of encouragement to our cadre. So on behalf of the association, I would like to thank our Honorable General Manager for his kind message. Now we are going to uh, see a video of विश्वेश्वरैया जी. हम उन्हें उनका जो लाइफ स्टोरी है उनको सुनेंगे और वो इतने सारा इंजीनियर्स को अभी तक मोटिवेट करके आ रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन को, और उनका लाइफ के ऊपर हमारा ये छोटा सा वीडियो रहेगा. उसके बाद हम अपना कार्यक्रम पे जाएंगे.
वेलकम बैक। अभी every year we have been celebrating on behalf of East Coast Railway Engineers Association and All India Railway Engineers Federation. We have been celebrating the Engineers Day every year. And generally हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और मीटिंग करते हैं। ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म इसी दिन जनरली हम लोगों को ये चांस नहीं मिलता है कि हम जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उन्हीं के साथ बात करने के लिए, और ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए बिकॉज जो नीचे लेवल में जो काम करते हैं फील्ड लेवल में जेईस एंड एसएससीज, वो लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये हमारा आज का ये ऑब्जेक्टिव है। और आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है हम लोग सुनेंगे, और सर हमारा भी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये बेसिकली ये हमारा मकसद है। और ये जो इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं विश्वेश्वराय जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, दिस ईयर पैंडेमिक के वजह से हम लोगों ने ये जो फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाए हैं, फिर भी हम लोग आज जुड़े हुए हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये जो है आज का ये हमारा जो टॉपिक है, हमने टॉपिक रखा है आज का डिस्कशन का कि द पैंडेमिक एंड इंजीनियर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे। उसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, और ये टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करेंगे, और हमारा प्रॉब्लम्स और हमारा एक्सपेक्टेशंस भी हम बताएंगे, और आप लोगों का टॉप मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग सुनेंगे। और ये इंजीनियर्स डे का जो स्पिरिट है उसे रियली हम लोग फील करेंगे। तो यही मकसद के साथ हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी being apart from each other, now we are discussing with each other. So before going to the next part, let me start today's presentation. And ये जो टॉपिक के ऊपर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैं अभी शेयर करूंगा। और इसमें बेसिकली ये जो पैंडेमिक में हम लोग कैसे काम किया, हमारा इंजीनियर्स फैटर्निटी कैसे काम किया हर डिपार्टमेंट में, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इलेक्ट्रिकल हो, एसएनटी हो, और जितना भी हो, क्या क्या इनोवेशन हमारा ये टाइम में हुआ है और क्या क्या काम हमने किया है, उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करेंगे। बेसिकली ये एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू देगा। कोई सिविल इंजीनियर अपना फील्ड में काम करता है, वो अपना काम को सोचता है कि ये मेरा काम है, लेकिन एक रेलवे की तरफ से हमने क्या अचीव किया और क्या काम करा है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में अभी प्रिपेयर करूंगा, वो मैं अभी शेयर करता हूँ।
ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा चीफ गेस्ट एजीएम साहब सुधीर कुमार जी आज बैठे हुए हैं, और पीसीएसटी मैडम भी बैठे हुए हैं, और पीसी साहब यूके साहब एनएस यूके साहब भी बैठे हुए हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं पीसीएमई इंजीनियर गौतम दत्ता जी बैठे हुए हैं, और सीपीडी ब्रिज वर्क्स इंजीनियर डीपी लाल जी भी बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ सीओ साहब भी ज्वाइन करेंगे बीके गुप्ता जी, और सीएमई प्लानिंग एम के पोदार जी भी बोले हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वो लोग आते हुए हम ये बताएंगे आपको। और इससे पहले हम ये सभी लोगों को हमारा एसोसिएशन का तरफ से स्वागत करते हैं, और हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी ऑलमोस्ट 264 है फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ईस्ट कोस्ट रेलवे, विशाखापट्टनम, संबलपुर, खुर्दा डिवीजन से, मंचेश्वर वर्कशॉप से, हेडक्वार्टर से सारे लोग हमारे साथ 264 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अभी। 265 में सभी लोगों को इंजीनियर्स एसोसिएशन का स्पिरिट और सभी लोगों को बधाई देता हूं, और ये मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। आज का टॉपिक द पैंडेमिक एंड इंजीनियर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे। दिस इज अ वर्चुअल सेलिब्रेशन, वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। ये पैंडेमिक हम लोगों को फोर्स किया है कि ये वर्चुअल सेलिब्रेशन करें, फिर भी थैंक्स गॉड नाउ वी आर एबल टू celebrate this virtual celebration, and thank you all participants and our distinguished guests to be with us for celebrating this virtual celebration. सर, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, सारा वर्ल्ड को उन्होंने अपना कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो इसका सिचुएशन इंडिया में भी देखने के लिए मिला, और हमारा जो फ्रॉम कलकत्ता से शुरू करके दिल्ली तक और मुंबई से शुरू करके चेन्नई तक पूरा इंडिया में लॉकडाउन शुरू हो गया। सारे लोग घर में रह गए और सभी सोचने लगे अभी आगे क्या होगा। इसी टाइम में इंडियन रेलवेज वाज देयर, वी केप्ट द नेशन ऑन मूव। ये रेलवे जो है देश को अपना गतिशील रखा, और जितना भी कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज है, उसको उसने एक जगह से दूसरा जगह को लिया, और जो लोग घर में बैठे थे उन्हीं लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटीज अपना पहुंचाया। सो हम लोग आज प्राउड फील करते हैं एज एन इंजीनियर, एंड पर्टिकुलरली टू बी ए रेलवे इंजीनियर। और रेलवे इंजीनियर ने ये ट्रैक को एकदम सही रखा, रेलवे इंजीनियर ने ट्रैक को फिट रखा, और अपना कोचेस एंड वैगन्स को फिट रखा, और देश का सेवा में समर्पित रहे हमारे रेलवे इंजीनियर्स। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, इन द मिडेस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये जो पैंडेमिक आया और लॉकडाउन आया तो सबने सोचा कि अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे चलेगा लाइफ। बट इसी में भी हमारा रेलवे ने अपॉर्चुनिटी ढूंढा कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो अभी पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया, ओनली चल रहा है फ्रेट ट्रेन चल रहा है, तो ये इसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढा, और हमने बहुत सारा काम टेकअप किया जो रेगुलर ट्रैफिक जब चलता है तभी हम लोग ये कर नहीं पाते, इतना ब्लॉक नहीं मिलता है, और जितना भी ये हम लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो ये जो लॉकडाउन का क्राइसिस था, इसमें हमारा ही इंजीनियर्स ने अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढा और अपना काम पे लग गए, और बहुत सारा अचीव किया जो कि आज हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे में हम लोगों ने काम को इसको आगे बढ़ाया। हमने क्या क्या काम किया, हम पर्टिकुलरली हम पूरा इंडिया में काम हुआ है, लेकिन हम फोकस करेंगे अपना काम ईस्ट कोस्ट रेलवे में हमने क्या किया। फाइटिंग विद द पैंडेमिक, हम लोगों ने बनाया मास्क। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हमारा जो मंचेश्वर वर्कशॉप है, सारे वर्कशॉप है आपका मंचेश्वर, डिफरेंट वर्कशॉप पे सैनिटाइजर प्रोडक्शन हुआ है डिफरेंट जगह में, वो सब का डिटेल मैं आपको दूंगा। ये और मैकेनिकल डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली ये काम हाथ को लिया, और मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सब प्रोडक्शन किया टू फाइट द पैंडेमिक। पैंडेमिक को फाइट करने में भी हमारा रिसोर्सेस पूरा लग चुके हैं, और ये जो रिसोर्सेस हमने पूरा यूटिलाइज किया ये पैंडेमिक को फाइट करने के लिए। बेड्स बनाया हम लोगों ने, और आईवी ट्रॉलीज बनाया, इंजेक्शन वगैरह ये सब लेने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए हमारा जो पूरा रिसोर्सेस लग गए। बेड्स बनाया, और जो हैंड्स फ्री सैनिटाइजर्स वो भी बनाया। ऑक्सीजन सिलेंडर को मूव करने के लिए भी हमारा इंजीनियर्स ने काम किया। पैंडेमिक को फाइट करने में अभी देखिए इसमें एक पोजीशन दिया गया है, मंचेश्वर वर्कशॉप ने मास्क बनाया 5730। सिमिलरली खुर्दा, पारादीप, कटक, पलासा, भद्रक, तालचेर
वो लोग मास्क बनाए 215। विशाखापट्टनम में मास्क बना 19,220, संबलपुर में 2,665, भुवनेश्वर में 752। सिमिलरली ईस्ट कोस्ट रेलवे में 29,182 का मास्क बनाया। सैनिटाइजर इन लीटर सिमिलरली 4,152। दिस इज द पोजीशन एज ऑन 1 सितंबर 2020। ये लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने बनाया। बेड बनाया मंचेश्वर वर्कशॉप ने 118। सिमिलरली संबलपुर में बना 50 बेड, 168 बेड। आईवी स्टैंड्स संबलपुर में 50, विशाखापट्टनम में 11, सिमिलरली 83, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 83। मैट्रेस भी बनाया हम लोगों ने मंचेश्वर वर्कशॉप में 200। ऑक्सीजन ट्रॉलीज मंचेश्वर वर्कशॉप 40, सिमिलरली विशाखापट्टनम 22, संबलपुर 64, 130। वॉश बेसिन्स बनाया सिमिलरली 92 वॉश बेसिन्स हमारा बनाया हमारे इंजीनियर्स ने पैंडेमिक को फाइट करने के लिए। और ये आइसोलेशन कोचेस, क्वारंटाइन कोचेस एंड आइसोलेशन कोचेस मंचेश्वर वर्कशॉप बना 51 और कोचिंग डिपो विशाखापट्टनम में बना 60। ये सब आइसोलेशन और क्वारंटाइन कोचेस हमारा ये पैंडेमिक को फाइट करने में हमारा इंजीनियर्स ने इस काम में भी लग चुके हैं। उसके बाद कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल हम लोगों ने हाथ में लिया। और कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल जनरली ये नहीं हो पाता है आपका जनरल मूवमेंट में। जनरल गाड़ी जब चलते हैं इसका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये काम भी हमें हाथ में लिया है। खुर्दा डिवीजन में 68 यूनिट्स सीटीआर का यूनिट होता है, संबलपुर में 33 और वाल्टियर में 69 यूनिट्स। सिमिलरली ईस्ट कोस्ट रेलवे में टोटल 170 यूनिट्स का कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल हुआ है। थ्रू थॉरो रेल रिन्यूअल्स खुर्दा डिवीजन में 115 किलोमीटर, संबलपुर में 48 किलोमीटर, वाल्टियर में 125 किलोमीटर एंड लाइकवाइज ईस्ट कोस्ट रेलवे में हमने ये रेल रिन्यूअल का काम हाथ में लिया। 288 किलोमीटर का रेल रिन्यूअल हुआ एक पैंडेमिक के टाइम में। थॉरो स्लीपर रिन्यूअल्स, स्लीपर रिन्यूअल्स का काम खुर्दा में 15 किलोमीटर, संबलपुर में 13 किलोमीटर, वाल्टियर में 12 किलोमीटर। सिमिलरली ऐसे ईस्ट कोस्ट रेलवे में 40 किलोमीटर का थॉरो स्लीपर रिन्यूअल्स हुआ है। डीप स्क्रीनिंग खुर्दा में 116 किलोमीटर, संबलपुर में 25 किलोमीटर, वाल्टियर में 141 किलोमीटर, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 282 किलोमीटर। रिन्यूअल ऑफ स्विचेस एंड क्रॉसिंग, स्विचेस एंड क्रॉसिंग थिक वेब स्विच हमने रिप्लेस किया खुर्दा डिवीजन में 40, संबलपुर में 22, वाल्टियर में 50, ऐसे 112। सिमिलरली स्विचेस को रिप्लेस किया 45, संबलपुर में 6 और वाल्टियर में 22, 73। सिमिलरली क्रॉसिंग को भी रिप्लेस किया हम लोगों ने 37, 24 एंड वाल्टियर में 16। ऐसे ईस्ट कोस्ट रेलवे में 77 नंबर्स ऑफ क्रॉसिंग्स चेंज हुआ है, रिन्यूअल हुआ है। ना दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिटेड हाइट सबवे, लिमिटेड हाइट सबवे भी देखिए ये पिक्चर दिखा रहा है। पूरे ट्रैक को पूरा खोद रहे, ट्रैक को पूरा डिसमेंटल करके उसका नीचे हमने प्रीकास्ट जो बॉक्स होता है प्रीकास्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। और ये जो काम आप कितना मुश्किल है, जनरली आप जब रेगुलर ट्रैफिक रहता है वो टाइम में करना कितना मुश्किल होता है। हम तो 2 साल से ढूंढ रहे थे, 2 साल से हमारा एक ब्रिज था उसको करेंगे, नहीं मिल रहा था ट्रैफिक, नहीं मिल रहा था ट्रैफिक। लेकिन अभी जो लॉकडाउन हुआ और वो उसको बना दिया गया। तो सिमिलरली बहुत जगह में हुआ है। खुर्दा डिवीजन में 2 ऐसा हुआ है, संबलपुर में 4 ऐसा हुआ है और सिमिलरली वाल्टियर में 14 हुआ है। एलएचएस कंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिटेड हाइट सबवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 20 एलएचएस बना है। सिमिलरली प्रोविजन ऑफ एडिशनल फुट ओवर ब्रिजेस का खुर्दा डिवीजन में 7, संबलपुर में 3, वाल्टियर में 5, ऐसे ईस्ट कोस्ट रेलवे में हम लोगों ने 15 फुट ओवर ब्रिजेस भी बनाए हैं। और जो है ये पैंडेमिक का टाइम में भी ट्रैक का ओपनिंग का काम हाथ में लिया गया और इंस्पेक्शन ऑफ सीआरएस हुआ। सीआरएस से इंस्पेक्शन हुआ चारमुला कुसमी खड़पा धानपुर जयपुर सेक्शन 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर का ये सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ। डिस्पाइट ऑफ द पैंडेमिक ये इंस्पेक्शन हुआ और ये काम टेकअप किया गया। इसमें चारमुला कुसमी और खड़पा का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी ओपन भी हो चुका है। सिमिलरली पालीबा मचकुड़ रोड सेक्शन 12.5 किलोमीटर का ये भी सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ है। और सीआरएस इंस्पेक्शन होने के बाद ये सेक्शन भी ऑलरेडी ओपन हुआ है, यही पैंडेमिक के वजह, यही पैंडेमिक का पीरियड में। फिर कंस्ट्रक्शन यूनिट का
अंदर जारपड़ा केरजंगा सेक्शन 10 किलोमीटर, करीब 10 किलोमीटर का ये भी हुआ है आपका सीआरएस इंस्पेक्शन, और ये भी ओपन हो चुका है। सिमिलरली ये परमानेंट डाइवर्सन जो है चारमाल रेडाखोल, ये भी करीब 3 किलोमीटर का, ये भी ओपन हुआ है और सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ है यही पैंडेमिक के टाइम में। और लॉन्चिंग ऑफ गार्डर्स फॉर आरओबी गार्डर बालीकुदा में और टिटलागढ़ में। लॉन्चिंग ऑफ गार्डर्स भी हुआ है। इसके बाद एसएनटी डिपार्टमेंट का काम के ऊपर हम थोड़ा ध्यान डालेंगे। ये एक हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, जो लोग एसएनटी में काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा जानना मुश्किल है। ये होता क्या है? पहले हम लोगों के पास था सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर था। ये इसका काम है कि आपका ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी है कि नहीं पता चलेगा, ये आपको बताएगा। ये अगर खराब हो जाता है तो फिर हम लोगों का मुश्किल होता है कि कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उसमें तो प्रॉब्लम होता है उसमें। तो अभी जो है इसको रिप्लेस किया गया हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन HASSD DAC जो है इसी के साथ रिप्लेस किया गया है। और ये इसका ये काम होता है कि अगर ये एक यूनिट खराब होता है तो उसके साथ एक स्टेप इन जैसा रहता है, वो दूसरा का वो भी काम करना शुरू करता है हाई अवेलेबिलिटी। तो ये हमारा काम को और आसान कर देता है। सडनली ये फेल्योर में भी ये हमारा जो सिस्टम है वो चल रहता है। ये इसको हम लोगों ने ये लगाया संबलपुर सिटी मानेपुर सेक्शन और गारविडी नेलीमारला कोरापुट सुकू कोरापुट गरुड़वल्ली गजपति नगरम, ये सब सेक्शन में ये सब लगाया गया है हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। उसके बाद मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर सिस्टम हैज बीन कमीशन्ड एट खुर्दा रोड स्टेशन विद 126 डिटेक्शन पॉइंट्स एंड 92 ट्रैक सेक्शंस। वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम प्रोवाइड किया गया है भद्रक, जाजपुर, केवंझर रोड, खुर्दा रोड, ब्रह्मपुर एंड पलासा स्टेशन में। Wi-Fi was commissioned at Kamalpur station in Walte division and Titlagarh station in Sambalpur division. The double locking arrangement in TLY has been tokenless block instrument जो होता है उसको DLBI किया गया है, has been completed in खुर्दा रोड एंड वाल्टिया डिवीजन में ये कंप्लीट हो चुका है। और जो है संबलपुर डिवीजन में 45 होना चाहिए, 45 से आउट ऑफ 45 43 का हो चुका है। और यही पीरियड में रेलनेट का बैंडविड्थ जो है 10 Mbps से 20 Mbps जयपुर केवंझर रोड कटक तालचेर बरहमपुर स्टेशन एंड 50 Mbps 200 Mbps रेल बिहार में उसको बढ़ाया गया, अपग्रेड किया गया है उसका बैंडविड्थ को। रेलनेट बैंडविड्थ हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 100 Mbps to 500 Mbps at खुर्दा रोड। Similarly, fire detection and alarm system were provided in 26 stations in Khurda Road division. Arrangement of many VCs. ये जो पैंडेमिक में बहुत सारे VC अरेंज करना पड़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करना पड़ा, जो कि हमारा एसएनटी का इंजीनियर ने इसमें लीड लिया और हमारा मैनेजमेंट को अब पूरा वो लोग कम्युनिकेशन मोड में रखा। तो इतने सारा VC को भी ऑर्गेनाइज किया ये। और लाइव स्ट्रीमिंग जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे रेलवे स्टेडियम में, उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था यूट्यूब और हमारा वेबसाइट में बाय प्रोवाइडिंग OFC कनेक्टिविटी टू द रेलवे स्टेडियम। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स के ऊपर एक थोड़ा नजर डालेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में 2 racks have been converted to HOG during the period and cumulative 37 racks have been converted to HOG in East Coast Railway, which will save fuel to the tune of 40 crores per year। 48 crores का सेविंग होगा। और जो लोग इलेक्ट्रिकल में नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा ये HOG और ये BOG सिस्टम क्या होता है, HOG क्या होता है। जनरली जो लोग इलेक्ट्रिकल में नहीं है उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक स्लाइड में और रखा हूँ। EOG सिस्टम में पावर सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीजल अल्टरनेटर। डीजल अल्टरनेटर लगता है सेट्स इक्विप्ड इन पावर कार्स, लेकिन HOG सिस्टम है क्लीन टेक्नोलॉजी दैट टैप्स पावर सप्लाई फ्रॉम द OHE। OHE से वो पावर कलेक्ट करता है, इसलिए उसके लिए जो एक पावर
अल्टरनेटर डीजल अल्टरनेटर जो है उसके साथ जाता था, वो अभी जरूरत नहीं है। आपका ओएचई से थ्रू ओएचई ये कलेक्ट करेगा पावर। इसमें क्या होगा फायदा? बेनिफिट्स ऑफ एचओजी सिस्टम: नो बर्निंग ऑफ डीजल विल लीड टू फ्री from air pollution and non-operation of DA sets will also lead to free from noise pollution. Noise pollution नहीं होगा और डीजल भी बर्न नहीं होगा। Reliability will be better due to reduced generation equipments, low maintenance requirements and reduced dead weight as compared to SG and EUG systems. Similarly, electrical works में आता है 132 numbers of aluminum cross feeder को replace किया गया with 150 square meter copper cross feeder at different TSS, SSP and SP में, और थर्मल इमेजिंग किया गया एट हिंदोल रोड, तालचेर रोड, अनुगुल, विजयनगरम, NLM यही सब सेक्शन में, और गुरुड़ झटिया, सीमांचलम, गोपालपट्टनम, दामनजोड़ी ये सब जगह में इसको थर्मल इमेजिंग भी किया गया। और लिफ्ट्स प्रोवाइड किया गया, 20 पैसेंजर वाला कैपेसिटी लिफ्ट्स जो है भद्रक स्टेशन और खुर्दा स्टेशन में प्रोवाइड किया गया है। सिमिलरली सोलर रूफटॉप प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, डिफरेंट जगह में इंस्टॉल हुआ है। मंचेश्वर रेलवे वर्कशॉप, DRM ऑफिस खुर्दा, और 12 नंबर सेट संबलपुर डिवीजन के 12 जगह इंस्टॉल किया गया, और खुर्दा डिवीजन में 4 जगह, सेंट्रल हॉस्पिटल मंचेश्वर, अनुगुल लोकेशन में ये जो सोलर रूफटॉप प्लांट्स इंस्टॉल किया गया। सिमिलरली हमारा इनोवेशंस क्या रहा, ये पीरियड में हम लोगों का कुछ इनोवेशंस भी हुआ है, और वो इनोवेशंस का बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ELS अनुगुल has come up with an innovative idea of cleaning ETAG-TM pinion को क्लीन कर लेने, इंडक्शन हीटर which took only 20 minutes, ऐसे एक डिवाइस को इनोवेट किया गया। तो वो जो 20 मिनट्स लेता है क्लीन करने के लिए पिनियन को, एर्लियर क्या होता था, इसको केरोसिन ऑयल में करते थे, मैनुअली करते थे, दैट वाज टेकिंग अराउंड 4 आवर्स। तो 4 आवर्स के जगह में 20 मिनट्स में काम होने वाला एक चीज ऐसा हमारा ELS अनुगुल ने इसको इनोवेट किया है। सिमिलरली नेक्स्ट एक इनोवेशन, प्रोविजन ऑफ कूलिंग अरेंजमेंट एज ए रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट मेजर, यही ELS अनुगुल ही एक इंस्ट्रूमेंट के साथ सामने आया, हैज मेड प्रोविजन ऑफ कूलिंग अरेंजमेंट इन 3 लोकोस बाय प्रोवाइडिंग ए 16 watt 100 volt DC fan to cool the electronics cards to avoid malfunctioning of the same due to rise in temperature. Of rise in temperature, this indigenous modification reduced the operating temperature of MPPS from 65 degree to 42 degree. और एक इनोवेशन जो हमारा एक दोस्त SNT में है, इंजीनियर TR मोहंती, SSC टेली and his team under the guidance of ASTM has devised a mini power pack, एक पावर पैक सिस्टम का इन लोगों ने खोज किया, जो 230 वोल्ट AC और 12 वोल्ट DC का, which can be used along with internet modem for uninterrupted supply in case of failure of local power supply. Local power supply अगर बंद हो जाता है तो ये अगर इंटरनेट मॉडेम में रहेगा, तुषार महांती जी, ये अगर रहेगा तो हमको अनइंटरप्टेड सर्विस मिलेगा। तो इसके बारे में इंजीनियर तुषार महांती भी आज अवेलेबल रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा वो ब्रीफ करेंगे। और उनके पास और भी 2 आइडिया है, विंड पावर एंड सोलर पावर के ऊपर उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, उसके बारे में वो 2-3 मिनट बात करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन के बाद इन एप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन सर इतने सारे होने के बाद हम लोगों का ये दुख की बात है, ये पैंडेमिक में हम लोगों ने 2 सोल्जर हमारा खो लिया है। हमारा दोनों साथी आज हमारे साथ नहीं रहे और ये पैंडेमिक उनको अपने साथ ले लिया। दिस इज ए मैटर ऑफ सॉरो एंड वी प्रे गॉड उनका फैमिली और उनका फ्रेंड्स जो भी है उनके साथ हमको संवेदना है। ये लोग जो है दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ टू द पैंडेमिक इन कोविड, दे आर कोविड पॉजिटिव थे ये लोग। इंजीनियर A मल्लिकार्जुन राव जी, SSC CNW विशाखापट्टनम, इन्होंने ये फाइट में 31 जुलाई 2020 में हार चुके ये पैंडेमिक के सामने। और सिमिलरली हमारा इंजीनियर SS के प्रसाद, SSC TRD विशाखापट्टनम,
ये 25 अगस्त को अपना दम तोड़े यही पैंडेमिक पे। तो हम चाहेंगे और इनका फैमिली को जो भी कंपनसेट वगैरह हो पाएगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा ये रिक्वेस्ट रखेंगे, इनका जैसा भी सेटल हो पाएंगे इनका फैमिली उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। सिमिलरली हमारा और एक साथी, ये कोविड नहीं थे, हार्ट अटैक में इनका देहांत हो गया यही पीरियड में 27 तारीख को। ये थे इंजीनियर एन वेंकट राव जी, एसएससी स्पेशल पीवे खुर्दा। 27 तारीख का इनका देहांत हो गया। इनका फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी हमारा ईस्ट कोस्ट के रेलवे तरफ से समवेदना हम ज्ञापन करते हैं। और इनका भी जो ड्यूज वगैरह मिलना है और उनका जो फैमिली को सेटल करना है, इसके लिए भी हमारा एसोसिएशन काम करेगा। और ये हम लगातार संपर्क में रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इनका जो ड्यूज है उनको मिलने तक और उनका फैमिली सेट होने तक एसोसिएशन, हम लोगों ने बात किया है। हमारा जो डिविजनल बॉडी है, डिविजनल का हमारा एग्जीक्यूटिव से, they will be in touch with the divisional authorities, and similarly here in headquarter we will be in touch with the zonal authorities, and हम लोग इन्हीं लोगों को सेटल करने तक हमारा काम करेंगे। ये हम आज भी यहाँ से डिक्लेयर करते हैं। और सर, ये पैंडेमिक के टाइम में हमारा क्या चैलेंजेस आया? हमारे साथ कुछ चैलेंजेस भी आया। जो पैंडेमिक होता है तो चैलेंजेस आएगा ही। इतना सारा हमने काम दिया, इतना सारा प्रोडक्टिविटी दिया, तो हमारा अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आया हमारे साथ, इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का सामने रखना चाहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन टू वर्क प्लेसेस, पैंडेमिक में सारे चीज बंद हो चुका। ना इवन ट्रेन था, पैसेंजर ट्रेन नहीं थे और पब्लिक व्हीकल्स भी नहीं थे। तो हमारा जो वर्क साइट में जाने के लिए, काम करने के लिए जाने के लिए हमारा इंजीनियर्स को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। पर्टिकुलरली हमारे पास कंप्लेन आया ट्रैक मशीन के जो लोग थे वो लोग बहुत सफर किया। ट्रैक मशीन लोगों को प्रॉपरली नहीं मिल पाया ट्रांसपोर्टेशन। और इस दौरान हमने एक प्रपोजल भी रखा था कि वर्कमैन स्पेशल चालू करने के लिए। हमने जीएम साहब को लिख करके दिया था एसोसिएशन का तरफ से कि एक जैसे दूसरा जगह भी होता है, सेंट्रल रेलवे में भी था, साउथ सेंट्रल रेलवे में भी था एक सिस्टम जो वर्कमैन स्पेशल, उसी का स्टाइल पे हमारा यहाँ भी वर्कमैन स्पेशल चालू करने के लिए हमने प्रपोजल दिया था, लेकिन कोई वजह से वो नहीं हो पाया। तो वो नहीं हो पाया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा जो इंजीनियर्स काफी प्रॉब्लम में आए। सिमिलरली अभी भी वर्क साइट्स, डिफरेंट वर्क साइट चलता रहा है कंस्ट्रक्शन में भी ये एक जनरल प्रॉब्लम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। अभी पहले तो एक जेईएसएससी इन लोगों को कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा था, और काफी डिमांड के बाद अभी व्हीकल्स मिल रहा है, लेकिन अभी 4 जेईएसएससी के लिए एक व्हीकल ऐसे प्रोवाइड हो रहा है। जबकि इतना बड़ा सेक्शन, आजकल का स्टाफ बहुत ही कम हो चुके हैं और एक जेईएसएससी का हाथ में बहुत बड़ा सेक्शन रहता है। 4 लोगों का डिफरेंट प्रोग्राम रहता है, डिफरेंट साइट रहता है। 4 लोगों को एक व्हीकल अगर प्रोवाइड किया जाए तो वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। तो मैं आज एजीएम साहब से, आज सीओ साहब तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हमारे साथ, वो अगर होते तो सुनते शायद। अभी तक सीओ साहब हमारे साथ नहीं ज्वाइन किए हैं। तो मैं एजीएम साहब और पीसी साहब का नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि हमारा जेई एंड एसएससी का कम से कम 2 जेईएसएससी को एक व्हीकल प्रोवाइड करने का इंतजाम हो जाए, इसके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द साइट। अभी स्टाफ बहुत ही कम है, एक जेईएसएससी का बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो अगर 2 एसएससी के लिए एक कम से कम मिलेगा व्हीकल तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए एक व्हीकल होने से वो जो पर्पस है उसे सॉल्व नहीं हो पाता है। सिमिलरली सर, एकोमोडेशन, हमारे साथ एकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम है। ये पर्टिकुलरली कोविड सिचुएशन में कहाँ जाए कहाँ रहे, ये भी सामना करने पड़ा हमारा जो जेईस एंड एसएससीज को।
बहुत जगह में रेस्ट हाउसेस नहीं है, एसआरएचएस नहीं है। जैसे अनुगुल जैसे जगह में, संबलपुर जगह में जो लोग काम करते हैं वो लोग हमें फोन करके बताते हैं यहाँ एकोमोडेशन नहीं है। तो ये एकोमोडेशन के लिए हमारे पास एक चिट्ठी मैं ये प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये दिस इज द लेटर रिटन बाय रेलवे बोर्ड। इसमें लिखता है कि AIREF का रिप्रेजेंटेशन, हमारा ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन का तरफ से रिप्रेजेंटेशन गया था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का ऊपर काम करके रेलवे बोर्ड ने ये लिखा, प्रोविजन ऑफ डिस्टिंक्ट रेस्ट हाउसेस फॉर एसएससीज एंड जेईस ड्यूरिंग आउट स्टेशन ड्यूटीज। ये एक चिट्ठी था कि एसएससीज और जेईस अगर आउट स्टेशन पे काम करेंगे उनके लिए डिस्टिंक्ट, पर्टिकुलरली एसआरएच नहीं, उन्हीं लोगों के लिए, जेई एंड एसएससी के लिए डिस्टिंक्ट रेस्ट हाउस बनाया जाए। और इसमें all PCs are requested to look into the matter and take necessary action as deemed fit in their respective railways. The action taken in the matter may be intimated to this office. ये हमने तत्कालीन पीसी साहब का नॉलेज में भी लाया था, और लेकिन उसके ऊपर और ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। अभी भी हमारा एकोमोडेशन का प्रॉब्लम, जो जेई एसएससी हमारा एकोमोडेशन, प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं हो पाता है। वो लोग इतना जो काम करते हैं, जहाँ जाते हैं आउट स्टेशन ड्यूटीज में, एसआरएस भी इतना अच्छा सा नहीं रहता है। तो ये मैं फिर ये पीसी साहब का नॉलेज में लाना चाहूंगा कि ये इसका ऊपर हम थोड़ा काम करेंगे। ये अभी भी हमारा ड्रीम है कि जेई एसएससी लोगों का डिस्टिंक्ट रेस्ट हाउस हो, नॉट एसआरएच। एसआरएच में सब लोग आते हैं तो उसका ठीक से नहीं रह पाता है, तो डिस्टिंक्ट और मिलता भी नहीं है कभी कभी। तो सिमिलरली हम चाहते हैं कि हमारा जो रेलवे बोर्ड का जो ये गाइडलाइन है, इसका हिसाब से डिस्टिंक्ट रेस्ट हाउस भी बनाया जाए। और सर एंटी सोशल थ्रेट्स, ये जो एंटी सोशल थ्रेट्स मतलब ये एक रेगुलर मेजर नहीं है, फिर भी एक इंसिडेंट हुआ था हमारा, तो वो भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ एजीएम साहब भी बैठे हैं और सीएसटी मैडम भी बैठी है और पीसी साहब भी बैठे हैं। ये एक हमारा यही पैंडेमिक टाइम में हमारा एक एसएससी का अपना काम कर रहे थे जगदलपुर स्टेशन में। उनका एक हमारा ही रेलवे का ही एक बाहुबली है, वहां पर कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर बोलते हैं, पता नहीं, और वो उनका साथ एंटी सोशल्स का साथ जुड़ के वो हमारा एक एसएससी के ऊपर हमला किया है। तो उसको हमने भी टेकअप किया था हमारा एसोसिएशन की तरफ से। और हमारा जो वॉलंटियर यूनिट है वो लोग गए थे, डीआरएम साहब का नॉलेज में भी लाए। और वो ऐसा पावरफुल है वहां पर, तो उनका अगेंस्ट में कोई बोलने के लिए भी राजी नहीं होता है, जो विटनेस वगैरह है। और जो भी हो, हम लोगों ने ये पीसी साहब का नॉलेज मिलाया और पीसी साहब ने हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं अभी उनको साहब को भी थैंक्स देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का तरफ से। पीसी साहब ने डीआरएम साहब को लिखा और आईजी आरपीएफ को भी लिखा। सो आफ्टर ए लॉन्ग प्रेशर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, तो दैट फेलो इज नाउ बिहाइंड द बार्स। तो मैं पीसी साहब को थैंक्स करना चाहूंगा। और सभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब ऐसा आता है कोई एविक्शन ड्राइव, कोई आता है, तो कोई एंटी सोशल्स, कोई लोकल लोग, ये सब हमारा जेई एसएससी के ऊपर फिजिकल असल्ट्स वगैरह करते हैं, तो तभी हम ये चाहेंगे कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा रहे। और सर एक प्रॉब्लम है, ये रेस्ट्रिक्टेड टी एंड इंसेंटिव्स, ये तो एक नेशनल प्रॉब्लम है, बता रहे हैं, लेकिन जो इसमें इफेक्ट होते हैं हमारा ही जेईज एंड एसएससीज। हर जगह 20 डेज का रेस्ट्रिक्शन लगाया। कोई ट्रक मशीन वालों ने हमें फोन करके बताते हैं कि उन लोगों का ज्यादा जाना पड़ता है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में काफी काम करना पड़ता है, मोर देन 25 डेज, ऑलमोस्ट एवरी डे उनको साइड जाना पड़ता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है 20 डेज में। सिमिलरली इंसेंटिव भी रेस्ट्रिक्टेड है। और इसमें जनरली बाकी लोग जो है ऑफिस में दे आर नॉट इफेक्टेड होते हैं, तो हमारे इसमें इफेक्टेड होते हैं जनरली हमारा ही कैडर का लोग। तो ये भी हमारा एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। अगर देश के लिए चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये डिमांड नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसके ऊपर ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हम तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा चैलेंजेस, और ये था हमारा एक ड्रीम था जो हम डिस्टिंक्ट रेलवे, डिस्टिंक्ट रेस्ट हाउस का बारे में, ये जो हमारा सपना कब सच होगा, और ये डिस्टिंक्ट रेलवे रेस्ट हाउस जो है हर एसएससी जेई के लिए कब बनेगा, वो उसका भी उम्मीद हम लोग करते हैं। और इतने के साथ मैं अपना
प्रेजेंटेशन यहाँ क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग विथ पेशेंस। तो मैं अभी इनवाइट करने जाऊंगा। मेरा तो जब जो वक्तव्य था मैं अपना प्रेजेंटेशन के साथ वो कह दिया हूं। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा हमारा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इंजीनियर बॉबिन महांती जी, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। इंजीनियर बॉबिन महांती, आप खुद को अनम्यूट करिए और कहिए। इंजीनियर बॉबिन महांती। Thank you, brother. Good evening, everybody. Happy Engineers Day. Tributing to Bharat Ratna Vishwesvaraya ji. We are hosting this online meeting for first time. So I think guests and engineers might have facing some problems. For that, I am excusing that. अभी हमारे साथ चीफ गेस्ट एजीएम साहब है। गेस्ट ऑफ ऑनर में पीसीएसटी मैडम, पीसी मैडम, पीसी सर, पीसीएमई सर है। और मैं बात किया था अभी सीओ साहब से, वो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। और हमारे साथ डीपी लाल साहब भी है, सीपीडी ब्रिज वर्क। आई वेलकम एवरीबॉडी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एजीएम सर who has accepted our invitation as chief guest. उससे पहले मैं हमारे इकोरिया का तरफ से जीएम साहब को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। उनको इनवाइट किए थे लेकिन उन्होंने बताया कि उनका कुछ पर्सनल एंगेजमेंट है। सो उन्होंने एक मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज दिए हैं। वो हमारे ब्रदर जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर बीपी दास दिखाए हैं, बहुत मोटिवेटेड मैसेज है। इसके लिए उनको थैंक्स देना चाहता हूं। और एजीएम साहब अपना बिजी टाइम से टाइम निकाल के हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और आशा करते हैं वो भी ऐसा ही कुछ मोटिवेटेड स्पीच देंगे जिसमें ये पीरियड में, पैंडेमिक पीरियड में इंजीनियर सब मोटिवेट होके अपना बेस्ट एफर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इकोरिया का तरफ से पीसी सीएसटी मैडम मांगा मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने फर्स्ट अपीयरेंस में भी, फर्स्ट रिक्वेस्ट में भी वो ऑफर, हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किए हैं और बिफोर टाइम वो हमारा मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ। शी इज वेरी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली विथ all staff, means from technician to top level. एंड हम लोग उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे में जब जाते हैं वो पूरा ध्यान से सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीसी साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ ऑलवेज खड़ा रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ है पीसीएमई साहब। उनसे हम जब मिलते हैं और एक ही बार अप्रोच में वो एक्सेप्ट करते हैं और हमारे मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो अपना टाइम देके हमारे साथ शेयर किए हैं। और उसके बाद वेरी वेरी सिंसियर थैंक्स टू डीपी लाल साहब, जिनका तबीयत अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल में है, तब भी वो हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किए हैं और पहले से वो यहाँ ज्वाइन किए हैं। और ये उनका शुरू से
सिंस लॉन्ग वो हमारा इक्वेरिया के साथ जुड़े हुए हैं, और एनी प्रॉब्लम जब होता है हम लोग जाते हैं वो तो सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबको मैं वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार है, टॉपिक जो है द पेंडेमिक एंड इंजीनियर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका बारे में थोड़ा मैं हिंट्स देना चाहता हूँ। और इससे पहले मेरा ब्रदर इंजीनियर बीपी दास सब कुछ बता चुका है, तो मैं थोड़ा और आगे जाके कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो पेंडेमिक टाइम में इंडिया में लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो सारा देश में सब काम बंद हो गया, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गया। लेकिन उस टाइम रेलवे ने अनलॉक में था। रेलवे इंजीनियर्स कभी भी लॉकडाउन में नहीं रहे हैं, वो पूरा अनलॉक होके अपना बेस्ट एफर्ट प्रोवाइड किए हैं। मैं अभी कुछ चीज रेलवे का जो इंजीनियर्स के ऊपर जो नेग्लिजेंस है मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं फेसबुक में देख रहा था कि इंजीनियर्स डे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बहुत विश किया है, सबको विश किया है। वो बहुत अच्छा चीज है, पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं हो रहा था। रेलवे एक बड़ा टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें इंजीनियर्स का भूमिका बहुत ज़्यादा है। फ्रॉम जेई टू अप टू टॉप लेवल इंजीनियर्स मोर देन 1 लाख है। सो इसके लिए इंजीनियर्स का कुछ वैल्यू रेलवे में पर्टिकुलर रहना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, श्रमिक दिवस वो मई 1 को डिक्लेयर किया जाता है और रेलवे उसको ऑब्जर्व करता है, बिकॉज रेलवे में मैक्सिमम लेबर्स है। सिमिलरली रेलवे में भी मैक्सिमम इंजीनियर्स है, दूसरा क्वालिफाइड पर्टिकुलर आदमी से ज़्यादा इंजीनियर्स है। तो रेलवे में भी एक्चुअल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन के लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए, जैसा आरएच रहना चाहिए और एनी लीव रहना चाहिए, सो दैट इंजीनियर्स कैन सेलिब्रेट दिस इंजीनियर्स डे। और दूसरी बात है कि हम लोग को रेलवे का तरफ से बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। इंजीनियर्स का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं लेबर फेडरेशन, लेकिन प्रैक्टिकली दे डू नॉट रिप्रेजेंट अस एट प्रॉपर लेवल। वो एक उदाहरण भी दे चुके हैं हमारा जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर बीपी दास जी जगदलपुर में केस में, और ऐसा केस बहुत जगह में हो रहा है। और ये जो रेलवे का सेफ्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सेफ्टी रेलवे इंजीनियर सेफ्टी कमिटीज अपना रिकमेंडेशन में इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन इसको रेलवे बोर्ड ने ऑलवेज नेग्लेक्ट किया बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस। सो सिंस लॉन्ग माने 1964 से सेफ्टी कमिटीज अभी तक जितना सेफ्टी कमिटीज है सब रिकमेंडेशन दिया है। सो मैं एजीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका बारे में एट टॉप लेवल में थोड़ा डिस्कशन करें कि इंजीनियर्स फेडरेशन जो है ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन मोर देन 65,000 एसएससी जेई को रिप्रेजेंट करता है, उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, so that they can represent at proper level their problems and they can share their views, their experience at proper level. लेबर फेडरेशन कभी भी ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन आई पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ इकोरिया थैंक टू ईस्ट कोस्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम जीएम टू अप टू ऑल ऑफिसर्स टेक्नोक्रेट्स, वो लोग का बारे में हम लोग का प्रॉब्लम सुनते हैं और सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं।
और एक मेजर प्रॉब्लम है रेलवे का सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए और डेवलप करने के लिए ग्रुप बी स्टेटस के बारे में एक चीज है जो पे कमीशन और डीओपीटी ने दिया था कि जेई एसएससी 4200 ग्रेड पे से अबव को ग्रुप बी करें और ग्रुप डी को ग्रुप सी करें। रेलवे ने क्या किया, ओनली ग्रुप डी को ग्रुप सी करा दिया, लेकिन जेई एसएससी को आज इट इज ग्रुप सी में रखा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो हमारा अंडर में काम करते हैं और हम लोग एक ही कैडर में रहा, जो फ्यूचर में काम करने में प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो हम लोग का अंडर में काम करते हैं उतना इम्पोर्टेंस हम लोग को नहीं देते हैं। और दूसरा रास्ते में हम लोग का उतना प्रेस्टीज भी नहीं रहता है कि बिकॉज अदर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे एक्सेप्ट रेलवे और सब में जूनियर इंजीनियर्स आर ग्रुप बी। सो ये एक दूसरा टाइप का हरासमेंट है जो रेलवे को सोचना चाहिए कि एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल पीपल को सही ढंग से प्रेस्टीज मिले। और एक चीज है, अभी रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने ग्रेजुएट इंजीनियर रिक्रूटमेंट एट एसएससी लेवल में बंद कर दिया, जो एक्चुअल सही नहीं है। बिकॉज रेलवे को बेटर आउटपुट देना है तो एजुकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस दोनों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेकिन अभी रेलवे ने ग्रेजुएट इंजीनियर को जब बंद कर दिया तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ रेलवे को इनडायरेक्टली लॉस हुआ है। वो जो बंद किया है वो भी अंडर प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो वो सही नहीं है। और जब एसएससी ज्वाइन करता है, जेई ज्वाइन करता है, उनको भी प्रमोशन सही ढंग से नहीं मिलता है। जबकि एक लो लेवल में ज्वाइन करता है नॉन टेक्निकल आदमी, उसको प्रमोशन मिलके वो टेक्निकल बन के फिर एसएससी बन जाता है। जबकि एक क्वालिफाइड इंजीनियर, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर, उसको प्रमोशन सही ढंग से नहीं मिलता है। सो एलिवेशन ऑफ इंजीनियर्स वो एक चीज है जो जिसका ऊपर एक फोकस देना चाहिए रेलवे बोर्ड को। सो आज तो जो हम लोग का साथ है सब डिग्निटरीज, वो इसको रेलवे का एचओडीज है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जितना इंजीनियर्स का प्रॉब्लम होगा, अभी जैसा पैंडेमिक का टाइम में जो प्रॉब्लम होता है इंजीनियर बीपी दास बताया, ऐसा ही फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होता है वो काइंडली इकोरिया को कॉन्फिडेंस में लें और इनका बात सुने और ट्रेड यूनियन को नेग्लेक्ट करें। बिकॉज ट्रेड यूनियन नेवर रिप्रेजेंट इसको इंजीनियर्स प्रॉपरली। और मैं इसको रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन से सब इंजीनियर्स जो ज्वाइन किए हैं मेंबर्स और सब गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग हमारा जो गेस्ट है उनसे सुनेंगे। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे साथ सीपीडी ब्रिज वर्क्स इंजीनियर डीपी लाल साहब हैं। तो मैं फिर आप लोगों को एक बार सूचित करना चाहूंगा, वो अपना हेल्थ का चैलेंजेस के साथ अभी हॉस्पिटल में है, फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी के तरफ से मैं उनका वेलबींग, गुड हेल्थ का प्रेयर रखूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं डीपी लाल साहब हमारे लिए थोड़ा एड्रेस करेंगे। Thank you, Mr. Das. Respected guest, AGR, respected audience, and President Korea, Mr. Bobby Mohanty, and General Secretary Mr. Das, and our dear friends. First of all, I would like to thank the IKEA for giving me an opportunity to be part of this gathering on the day of our learned legendary engineer Bharat Ratna Sir Mochgundam Viswesvaraya ji. I offer me virtual for tribute. इसमें सर कहने की बात नहीं है कि जो हमारा
इंजीनियर्स हैं वो बैकबोन हैं। टॉपिक भी जो इन्होंने लिया है कि पैंडेमिक और रेलवे इंजीनियर्स, इट इज सो रेलिवेंट which normally ICLA is taking every year such very pertinent topics. One thing I will like to say कि हमारा जो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो बैकबोन है मेंटेनेंस का, वो इंजीनियर्स हैं। इनफैक्ट लाडनाथ का जो चैरियट है, हमारा जो कोचिंग डी पुरी में है, उसके जो TXRs, उसके जो स्टाफ हैं, वो उसकी टेस्टिंग करें, वहां से हमारी पूजा होती है कर्म की। इसके बाद इन्होंने इतने से वेगरीज देखे हैं। पैंडेमिक तो चलिए एक कंट्रोवर्सी चीज हो गई है, बट जितने फ्लड ब्रीचेस, आप चाहे सुपर साइक्लोन कहिए, चाहे आप जो हुदहुद कहिए, चाहे आप फाइलिन कहिए, चाहे आप फ्लड एंड ब्रीचेस कहिए, चाहे आप टनल के अंदर एलिमेंट्स कहिए, चाहे आप बड़े से बड़े चैलेंजिंग वर्क के टारगेट को मीट करने की एक कमिटमेंट की भावना है, वो जो है दैट विद आवर ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स, and I really salute their spirit, and that no pandemic will ever be able to detrimental their spirit. हम लोगों का बिल्कुल जैसा चीजें उठाई हैं कि बिल्कुल सोचने लायक हैं। We should be really cognizant, whatever best possible we should do to our JEs and SSCs. और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक जो आपका फोरम इंडिया है, कोरिया जो एसोसिएशन है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे इंजीनियर्स के लिए जिनको कहीं और कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। यूनियन वाले अपने यूनियन चले जाते हैं, ऑफिसर्स का अलग ही हो जाता है, बट व्हाट अबाउट द इंजीनियर्स हु आर मोर देन इन नंबर्स एंड हु आर द रियली डीलिंग, हु आर द बेसिकली गिविंग यू द रिजल्ट। जो प्रेजेंटेशन में हम सब देखा कि क्या एक से एक ऐसे चैलेंजिंग वर्क किए हैं, इसका रिकॉग्निशन इंडियन रेलवे में रेलवे मिनिस्ट्री ने, मंत्री जी ने भी किया है। जो हम लोगों ने ब्रिज में काम किए, ट्रैक में किए, कोचिंग डिपो किए, ट्रांसमिशन ऑफ कोचेस किए, इलेक्ट्रिसिटी में किए, एनटी में किए, कोई भी फील्ड आप लीजिए, रात दिन वो आदमी सोया चक्का चलाता रहा। भले ही हम लोग कहें कि लाउन है या चक्का जाम है। मैं ज्यादा तो समय भी नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरी एडवाइस है जो कि मेरा एक व्यक्तिगत है, जो कि मैं कोविड से खुद इफेक्ट हुआ, तो मेरा एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है हमारे सभी इंजीनियर भाई से, आप कर्म के तो योद्धा हैं, लेकिन अपने घर के लिए आपको एक योद्धा बन के आना है इस पैंडेमिक के खिलाफ। वो कैसे करेंगे? जैसे मेरा था कि मैं दम बाहर रहा, हर जगह घूमा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कहीं कुछ नहीं हुआ। बट जब मैं एयरपोर्ट पे आया T3 पे, जो कि सबसे साफ बोला जाता है, T3 पे आई गॉट इन्फेक्शन। तो ये आप ध्यान रखें कि बहुत जरूरी नहीं है बहुत साफ जगह पे आप बैठे, वहाँ आपको बच्चा आपका जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मिसेज आपकी मार्केट में जा रही है, प्लीज काउंसिल देम, वॉट एवर इज द प्लेस दे शुड वियर द मास्क, दे शुड टेक द सैनिटाइजर। अब स्कूल भी खुल जाएंगे तो सुनने में आ रहा है कि तो इट इज गोइंग टू अगेन ऑन द पीक हैज नॉट कम, वी आर गोइंग टू द थर्ड डे इसमें, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड दिस डिजीज इज सो सुडो, आपको पता ही नहीं चलेगा वो आपके घर में घुसा है स्टोर की भांति। हमें हुआ तो वाइफ को हुआ, तो वाइफ को बंगलों की उनको हुआ, बंगलों को तो उसके भतीजों को हुआ। ये जो चीजें जो चेन रिएक्शन इसकी फास्ट है, तो इसमें जैसे ही पता चला आपको थोड़ा भी टेस्ट, मुंह का टेस्ट खत्म हो रहा है, फीवर हो रहा है, जांच सरकार फ्री में कही है, रेलवे हॉस्पिटल इतना अच्छा, आप बगल में आके करा लीजिए, सो दैट आइसोलेट हो जाइए, फैलाइए मत इसको। और अपने बच्चों को तो जरूर समझे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं कि इनको सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। काम तो आप करते हैं, आपके काम लिए की फहरिस्त यदि गिनाई जाए तो उसको गिनने में कई दिन बीत हैं। मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ मैं इस कोरिया को, उन्होंने मौका दो शब्द मुझे कहने को दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने जो हमारा फैमिली के लिए और हमारे लिए
जो एडवाइस दिया है, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टेक द अटमोस्ट केयर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। एंड मैं सर सभी के तरफ से फिर एक बार जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से वापस आइए हमारे साथ। वी लव यू सर, वी रेस्पेक्ट यू, नमस्ते, थैंक यू। तो मैं अभी नेक्स्ट हमारे साथ प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर गौतम दत्ता जी, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। अभी वो हमारा उसमें हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी फिर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट स्पीकर के लिए मैं इन हमारे साथ हमारा प्रिंसिपल सी साहब इंजीनियर NS यूके साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी हमारा एसोसिएशन के लिए काफी सिंपैथेटिक रहे हैं। हर टाइम हम उनके साथ काम किया और हमने जब भी कोई भी इश्यू लेके गया उन्होंने काफी एनकरेज किया, हमें कोऑपरेट किया। और पर्टिकुलरली मैंने जैसे मैंने मेरा प्रेजेंटेशन में बताया उसमें भी बहुत प्रोएक्टिवली काम किया NS यूके साहब ने, वो अभी बैठे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, PC NS यूके साहब वो अपना वक्तव्य रखेंगे। खुद को सर अनम्यूट करिए। सर तो बैठे हैं सर। कोई टेक्निकल इश्यू शायद होगा, थोड़ी देर में हम फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। PC इकवर साहब मुझे फोन कर रहे हैं, 1 मिनट मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। Okay. Good evening. Thank you, Mr. Das. Respected Sri Sudhir Kumar ji, Sri Mr. Das, Bobin Monty, and all my friends, all engineers. मैं सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे भी यहाँ पार्टिसिपेट करने का और बोलने का मौका दिया गया। इनफैक्ट हम लोग यहाँ हर साल इस दिन को सेमिनार करते हैं। इस साल वर्चुअल सेमिनार हो रहा है। हम लोग हमारे जो इंजीनियर हैं उनको याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, भारत रत्न श्री विश्वेश्वरैया जी को। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि हम लोग सही सम्मान उनको तभी होगा जब हम लोग एक सही इंजीनियर की तरह काम करें। इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग अपना नॉलेज बढ़ाएं।
जो इंजीनियर्स हैं वो एक इंजीनियरिंग का काम करें, तभी हम उनके प्रति एक सही सम्मान देना साबित होगा। जैसा कि मिस्टर दास ने और लाल साहब ने बताया, बोबिन दास ने भी बताया, बोबिन मोहंती ने भी बताया कि पेंडेमिक रहते हुए भी सभी इंजीनियर्स ने जी जान से बिना अपने सेहत का ध्यान रखे हुए भी, इनफैक्ट एक दो इंजीनियर्स ने अपनी जान भी दे दी, लेकिन अपनी ड्यूटी से भागे नहीं। तो ये एक वास्तव में बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे इंजीनियर्स रात दिन काम में लगे रहते हैं। इनफैक्ट जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ था, काफ़ी रेलवे में ट्रैक की स्पीड, ओवरऑल रेलवे में ट्रैक की स्पीड उन्होंने कम कर दिया था, जिससे कि मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ना हो। इसी बात को लेकर हम लोगों ने भी, सिटी ने मुझसे डिस्कस किया कि हम लोग क्या करें ईस्ट कोस्ट रेलवे में। फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग जो है स्पीड कम नहीं करेंगे, जो नॉर्मल स्पीड है उसी में चलाएंगे। और इस चैलेंज को हमारे सभी इंजीनियर्स ने एक्सेप्ट किया और आज तक हम लोगों का जो ट्रैक की स्पीड है वो कम नहीं हुई, जो नॉर्मल स्पीड वही चलती रही। और मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि 2003 के बाद से अभी तक जितने जो सेक्शनल स्पीड हमारे बढ़े हैं इस साल, या हमारी प्लानिंग है, उतना कभी नहीं हुआ था जब से ईस्ट कोस्ट बना है। सिमिलरली जो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको रिमूव करने की जो गति से हम लोग इस साल प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो अभी तक लगभग हमारे 21 निकालने का टारगेट था साल भर का, अभी तक में लगभग 17 हो चुके हैं। तो इसी तरह चाहे CTR का हो, TRR का प्रोग्रेस हो, डिफेक्टिव वेल्डिंग ना हो, इसके लिए हम लोग वेल्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने का काम जो हमारे इंजीनियर्स ने हमारे वेल्डर्स को एजुकेट किया, उसके चलते में जहां करीब 36% वेल्ड फेलुअर वेल्ड डिफेक्टिव वेल्ड्स होते थे वेल्डिंग में, आज जाके वो 2% तक आ गया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। चाहे वो ब्रिज रीबिल्डिंग का काम हो, LCA एलिमिनेशन का काम हो, मैं कितना नाम गिनाऊं, हर फील्ड में पेंडेमिक में सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, हमारे इंजीनियर्स फील्ड में जाके काम कर रहे हैं और हर महीने कुछ ना कुछ हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड बना के और काम कर रहे हैं। इतना वो चैलेंज करते हैं, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, 3-4 समस्याएं अभी मिस्टर दास ने बताया था। जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन की बात, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, GM साहब ने परमिशन दे दिया है, उसके बाद भी क्यों नहीं चल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। GM साहब ने अपने तरफ से क्लियर कट परमिशन दे चुका है सभी डिविजन्स को। यदि जो डिवीजन नहीं चलाते हैं वो सेक्शनल सीनियर DNs कम से कम या डिप्टी सी कंस्ट्रक्शन हैं या जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अपने अपने कंसर्न DRM से बात करें और हम लोग भी इसको देखेंगे कि अल्टीमेटली ये बंद क्यों हुई। और जहाँ तक 2 जूनियर इंजीनियर या SSC के बीच में एक व्हीकल देने की बात है, इसको हम देखेंगे कितना फिजिबल है। अभी चूंकि थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है रेलवे में, पर इसको देखा जाएगा क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। एक जो डिस्टिंक्ट रेस्ट हाउस की बात हुई है उसको भी हम देखेंगे। इनफैक्ट मेरे नॉलेज में ये था नहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसके बारे में अभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो ज़रूर इसके बारे में कोशिश करें। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। एंटी सोशल थ्रेट का जहाँ तक सवाल है, एक तो डिपार्टमेंटल केस था, वो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हुआ है। बाकी आउटसाइडर से भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी समस्या आती है मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी इंजीनियर से कि इसके बारे में तुरंत हायर लेवल में इसकी नोटिस दी जाए, जिससे कि हम लोग जो भी कोशिश हो सकता है वो काम करें। अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है, पुलिस, RPF या अपने हायर ऑफिशियल्स की जानकारी में तुरंत इस बात को लाएं। सर्टेनली हम लोगों का खुद का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक
एक और आइटम था जो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज का टीए 20 डेज तक का, उसके बारे में भी वो शायद ये पूरे ऑल इंडिया की पॉलिसी है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। हो सकता है इसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है। इसको मेरे ख्याल से पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ बात किया जा सकता है किस हद तक इसमें सफलता मिलती है, मुझे डाउट है इस बारे में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों की सुरक्षा के बारे में या आप लोगों की सहूलियत के बारे में। जब भी कोई समस्या आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एसोसिएशन की तरफ से आएँ, इंडिविजुअल कोई भी कहीं से भी किसी वक्त हम लोगों को फ़ोन कर सकता है, बात कर सकते हैं। वी विल बी ऑलवेज विथ ऑल ऑफ आवर इंजीनियर्स, क्योंकि आप लोग ही बैकबोन हैं इस रेलवे के। इंजीनियर्स जिस दिन ठान लेगा कि मुझे ये काम करना है, वो हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि जैसे हम लोग काम करते समय जो सिस्टम है उसमें शॉर्टकट ना करें। शॉर्टकट करने से कभी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो किया करें। काम करने के लिए कभी जैसे आपको ट्रैफिक ब्लॉक की ज़रूरत है तो ब्लॉक नहीं मिलता है करके आप कम टाइम को एक्सेप्ट मत करिए। जितना टाइम की ज़रूरत है उतना का मेमो दीजिए आप, अदरवाइज फिर वो शॉर्टकट करना पड़ सकता है आपको, जो अनसेफ हो सकता है। इस पेंडेमिक में मेरी सभी इंजीनियर से एक और रिक्वेस्ट है। लाल साहब ने जैसे कहा था कि अपने परिवार का ध्यान रखें पेंडेमिक से बचाने के लिए, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, चाहे आपके रेलवे एम्प्लॉई हों या कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइज़ हैं, उन सभी की सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है। सबको मास्क पहनना, साबुन या सैनिटाइज़र या जहाँ जहाँ जितनी संभव हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स में या अपने जितने भी लेबर काम कर रहे हैं हमारे साथ में, उन सबको आप एजुकेट करिए, क्योंकि आप फ्रंटलाइन स्टाफ हैं। आप लोग जितना कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, उतना हम लोग हेडक्वार्टर में बैठ कर के उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लेबर लोगों से। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में रहकर हमें काम करना है, और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। आपने मौका दिया मुझे कुछ बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. You have been always very cooperative for our association. हमने जब भी कोई काम के लिए आपके पास गए, आपने अपना फुल कोऑपरेशन हमें दिया, और आप आज जो एडवाइस किए हैं कि सेफ्टी के लिए हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। जो भी जितना भी ब्लॉक्स में हमारा जो जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखेंगे, और कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। हम आज ये इकोरिया का तरफ से भी हमारे जितने भी साथी हैं, हम उन सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके पर ध्यान लें। तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपेक्टेशंस है, हमारे लिए भी ये एक कर्तव्य रहता है। तो अभी थैंक यू सर। मैं अभी नेक्स्ट स्पीकर हमारे साथ है प्रिंसिपल CST मैडम इंजीनियर एस मांगाभी मैडम। मैडम आपने काफी कोऑपरेटिव रहा है हमारे लिए। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं एस मांगाभी, प्रिंसिपल CST मैडम। Am I audible? Yes madam, yes audible madam. Am I visible? Yes madam, visible audible. Welcome Thank madam. you so much. It gives me immense pleasure to participate in this webinar. I like to congratulate all the engineers of EcoR for their dedication and stamina to face the challenges posed by the pandemic. Our engineers have continued to maintain and commission the new assets even besides the pandemic. My message to my engineers of EcoR is to be united and match their efforts and energies to the goals of this organization. With this Indian Railway Management Service in future, the barriers of departmentalism
are expected to vanish, further uniting all of us. We need to support each other and learn from others' mistakes as well. I would like to again emphasize this process of tendering and the contract management is highly sensitive. Ignorance is not a bliss. I request all my engineers to understand the clauses of GCC and the contract for the works which are awarded before executing these contracts, and to exhibit all kinds of carefulness while executing the works. With this advancement in technology, our electronic interlocking assets are increasing day by day. We have to increase our knowledge in these advancing technology. There is no excuse. We have to keep learning. Predictive maintenance, preventive maintenance, visualizing the problems is the need of the day. I request all my engineers to be careful. We have to be united. We have to work carefully. Thanks a lot. Thank you so much for giving me this opportunity. अनम्यूट करंतु दास जी अनम्यूट कीजिए दास जी अनम्यूट कीजिए पीपी दास जी अनम्यूट करिए ओके थैंक यू मैडम आपने जो कहा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे अपना जो जीसीसी वगैरह उसको भी ध्यान में रखते हुए जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसको लेके अपना काम में आगे बढ़ेंगे तो बिफोर गोइंग टू हमारा चीफ गेस्ट जो है आज एडिशनल जनरल मैनेजर साहब है मैं उनको वेलकम करता हूं अभी तक सीओ साहब हमारे पास साथ नहीं आए हैं तो अभी हम सुनेंगे आज हमारे साथ एजीएम साहब सुधीर कुमार साहब इंजीनियर सुधीर कुमार साहब बैठे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुधीर कुमार साहब अपना वक्तव्य रखेंगे एजीएम ईस्ट कोस्ट रेलवे Very good evening to all of you. All guests of honors present in this webinar, members and office bearer of ECOR EA, and all my dear friends from headquarter office and from all the 3 divisions. To begin with, I would like to congratulate each one of you on this Engineers Day and convey my best wishes to you, to each one of you. As I have seen the presentation which has demonstrated the good work which have been done by engineers on East Coast Railway in this pandemic situation, which is really commendable. Not only you people have taken up the challenge of the pandemic, but has converted this disastrous period into an opportunity and have brought many laurels to the East Coast Railway, for which I am thankful to each one of you. Your commitment is commendable, and organizing this webinar, taking this initiative is also a very, very commendable task which ECOR EA has taken up. The topic chosen, the pandemic and engineers of ECOR Railway, is very, very relevant in the present circumstances. And my first and foremost request to each one of you will be to please take full care of yourself, because this virus is very, very dangerous, very, very contagious, and quite unknown even now. Take full care of your staff, take full care of your family. Please use all personal protections while your work, while on your domestic works also, because outside also the pandemic is spreading very, very fast. This fight is
appears to be long COVID war. I mean, it's not going to be over in near future. So please take care of yourself and your family and your staff and which includes your contractor staff very, very meticulously and to the extent possible. I really feel sad and sorry for loss of our 2 engineers because of this COVID pandemic, who have done all for railway system and gave their ultimate sacrifice, finally discharging their duties. Well, most of the things have already been spoken by my earlier speakers. One thing I would like to emphasize on this occasion, that now we are living in a knowledge-driven society, and acquiring knowledge and adapting ourselves to the new technologies suitably is the need of the day. Engineers have never let down the society, and I hope that we will rise to the occasion, whether it is a challenge of COVID pandemic, whether it is a challenge of changing scenarios, technological scenarios, changing organizational and environmental issues. All these challenges, I hope we are capable and we will cope them up efficiently. And one more thing which PC has told, I would like to emphasize, please don't go to any shortcuts, because we are responsible to the Indian public and property of the railways also. And any shortcut basically indicates somewhere somewhat lack of planning or somewhat incompetence. I hope you people will be aware, will remain alert on your duty, and please don't do anything which lead to any kind of any unusual incidents. The issues you have raised have been taken note of, and we will try to do the best, whatever is possible in the framework of our working. In the end, I will again compliment ECOR EA for their initiative of organizing this webinar, for exchanging ideas, for giving opportunities to me as well as to others to share views. And I hope that the association will remain successful in all their endeavors. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your kind words, and we will take care of the safety first, as you have advised. Similarly, we should also be looking after the safety of our families, as advised by you. So before ending, I would like to thank all the distinguished guests, CPD, Bridgeworks Engineer DP Lal. He has attended despite of his illness, and PC Engineer NS UK Saab, PCST Madam, Engineer S Mangavi Madam, and Amara AGM Saab. Despite of his busy schedule, he has been with us to grace this occasion. I would like to thank all the distinguished guests on behalf of the association. Similarly, आज का जो ये कार्यक्रम जो है, हमने सुबह एक प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा था सर. जनरली हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं इंजीनियर्स डे का ओकेजन में. तो दिस ईयर हम लोगों ने प्लांटेशन का रखा, और ये प्लांटेशन का काम को सफल बनाने के लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगा मैनचेस्टर का इंचार्ज इंजीनियर रथ एंड इंजीनियर PL मिश्रा जी, इंजीनियर डैंग, मैं थैंक्स देना चाहूंगा. सिमिलरली मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसका इनपुट्स देने के लिए मैं इंजीनियर GK जैना, D साहू, S दास, मोहम्मद फयाज एंड MR गौड, ये सभी लोगों का अपना थैंक्स देता हूं. सिमिलरली इसको सक्सेस करने के लिए अनइंटरप्टेड नेट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड ये सब अरेंज करने के लिए मैं मेरा साथी काली प्रसाद दास, उनको थैंक्स देना चाहूंगा. सिमिलरली ये जो जूम का पेड वर्जन है वो हमको प्रोवाइड किए हैं मेरा एक रिलेटिव भवानी शंकर मिश्रा जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं. बिकॉज ऑफ हिज cooperation we have been able to be in the Zoom meet. This is a paid version of Zoom. free mode जो है वो उसमें हम लोग only 40 minutes तक बात करेंगे, लेकिन इसमें now
अभी 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया, फिर भी हम लोग अनइंटरप्टली बात कर पा रहे हैं। मैं इसलिए उनको भी थैंक्स देना चाहता हूँ। और आज जो ये सेमिनार सक्सेसफुल हुआ, अभी भी हमारे साथ 226 मेंबर्स बैठे हैं। ये 275 मेंबर्स थे। मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे डिफरेंट डिवीजन से और डिफरेंट जोन से भी कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। तो वो सभी लोगों के लिए मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स का तरफ से, इंजीनियर्स एसोसिएशन का तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी ने कोऑपरेट किया, ये सेलिब्रेट किया और इसको सक्सेस किया, इसीलिए सभी को थैंक्स एंड गुड नाइट। थैंक यू ऑल। मैं अभी ये जो सेमिनार उसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू ऑल।